معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے سوغات کے سرائے میں عثمان گورنر ساگورس شیخ ادبالی اور باقی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہوتا ہے، جبکہ گکتوک مسلسل ہیرا کی جانب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر سجان خاتون گکتوک کی جانب دیکھ کر مسکرا دیتی ہے۔ پھر ہیرا کہتی ہے، تیر اندازی کے حوالے سے آج آپ نے بہت کچھ سکھایا، تیر اندازی میں آپ واقعی ماہر ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی ہیرا گکتوک کی جانب دیکھتی ہے تو عثمان بھی یہ بات محسوس کر لیتا ہے۔ پھر بالا خاتون ہیرا سے کہتی ہے، ماشاءاللہ ہیرا بھرپور مشق کرے، پھر آپ بھی ماہر ہو جائیں گے۔ اسی لمحے بیس بدلے جولیا کے دو آدمی کھانا لے کر وہاں آتے ہیں اور کھانے کے نیچے چھپائی ہوئی کمانوں سے دو تیر چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک تیر جا کر گورنر ساگورس کے کندھے میں پیوست ہو جاتا ہے، جبکہ دوسرا تیر ہیرا کو بچاتے ہوئے گکتوک کی بازو میں جا لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر سرائے میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ عثمان اور گکتوک اپنے خنجر ان دونوں کی جانب پھینک کر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ پھر عثمان غصے سے کہتا ہے، میرے ہی دسترخوان پر میرے مہمان کے ساتھ ایسا کون کر سکتا ہے؟ سپاہیوں چلو سرائے اور بستی میں ہر جگہ پھیل جاؤ، غداری کے مرتکب اس مجرم کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ یہ سنتے ہی سپاہیوں کی دوڑیں لگ جاتی ہیں، جبکہ ہیرا روتے ہوئے بابا بابا پکارتے ہی چلی جاتی ہے اور عثمان کمرال ابدال سے کہتا ہے، کمرال ابدال تیر زہریلا ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب گورنر ساگورس اور گکتوک کو لے کر ایک طرف چلے جاتے ہیں۔ ادھر بران سپاہی بھائی سنگر کے ساتھ باورچی خانے میں داخل ہوتا ہے اور وہ دونوں وہاں کا جائزہ لینے لگ جاتے ہیں۔ اسی لمحے بران کی نظر میز کے نیچے ایک ہاتھ پر پڑتی ہے۔ اس پر بران ایک دم سے کپڑا ہٹا کر دیکھتا ہے تو میز کے نیچے باورچیوں کی لاشیں بغیر کپڑوں کے پڑی ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر بران اور سپاہی بھائی سنگر کو بہت غصہ آتا ہے اور سپاہی بھائی سنگر کہتا ہے، دونوں عثمان صاحب کے لیے لذیذ ترین کھانا بنانے کے خواہشمند تھے، مگر بزدلوں نے انہیں مار ڈالا۔ اسی دوران وہاں گندوز آتا ہے اور پوچھتا ہے، کیا خبر ہے؟ تو بران گندوز کو ان کی لاشیں دکھاتے ہوئے کہتا ہے، انہوں نے ان دونوں کو شہید کر کے ان کا لباس پہن لیا گندوز صاحب۔ اس پر گندوز کہتا ہے، بران سراغ ڈھونڈو، ہر جگہ تلاش کرو۔ یہ سنتے ہی بران سپاہی بھائی سنگر کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری جانب کمرال ابدال ساگورس کا علاج کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ عثمان، بالا خاتون اور ہیرا بھی وہاں موجود ہوتے ہیں اور ہیرا زاروں کی طرح رو رہی ہوتی ہے۔ عثمان کمرال ابدال سے پوچھتا ہے، کمرال ابدال ان کی حالت کیسی ہے بتائیں مجھے۔ تو کمرال ابدال کہتے ہیں، حضور میں نے تریاق زہر دے دیا ہے، لیکن زہر کافی خطرناک ہے۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے، خبردار آپ ایک ماہر طبیب ہیں، گورنر ساگورس کا علاج آپ کے پاس ہے۔ اس پر کمرال ابدال کہتے ہیں، انشاءاللہ حضور انشاءاللہ۔ یہ کہتے ساتھ ہی کمرال ابدال گورنر ساگورس کا زخم داغنے لگ جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ہیرا تڑپ پڑتی ہے۔ ہیرا کو دکھی دیکھ کر بالا خاتون اس کے پاس آ کر اسے حوصلہ دیتی ہے اور کہتی ہے، ہیرا اپنے آپ کو دکھی مت کریں، آپ کے بابا ٹھیک ہو جائیں گے۔ جبکہ زخم داغنے کے بعد کمرال ابدال اس پر مرہم لگا دیتے ہیں اور عثمان غصے سے کہتا ہے، جس نے بھی میرے مہمان کے ساتھ ایسا کیا ہے وہ بھی میرے دسترخوان پر آ کر میں اسے سوغات کے دروازے پر لٹکاؤں گا، ایک بار وہ میرے ہاتھ لگ جائے۔ پھر عثمان کمرال ابدال سے پوچھتا ہے، کمرال ابدال گکتوک کیسا ہے؟ جواباً کمرال ابدال کہتے ہیں، حضور میں نے اسے تریاق دے دیا ہے، اس کا زخم ہلکا ہے۔ جبکہ باہر جولیا ایک مقام پر چھپ کر سپاہیوں کی ہلچل دیکھ رہی ہوتی ہے، کوئی سپاہی ادھر بھاگ رہا ہوتا ہے تو کوئی ادھر۔ یہ ہلچل دیکھ کر جولیا کہتی ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ لعنتو، کیا تم دونوں کامیاب نہیں ہوئے؟ یہ کہتے ساتھ ہی جولیا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ادھر ایک کمرے میں گکتوک بے ہوش پڑا ہوتا ہے۔ اسی لمحے وہاں ہیرا آتی ہے اور اس کے ساتھ ہی گکتوک کو بھی ہوش آ جاتا ہے۔ گکتوک کو دیکھ کر ہیرا کہتی ہے، میں آپ کی شکر گزار ہوں، اگر آپ نہ ہوتے تو شاید میں بھی۔ ہیرا کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی گکتوک بول پڑتا ہے، شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ جواباً ہیرا کہتی ہے، میں ٹھیک ہوں۔ اسی لمحے کمرال ابدال، بران اور سلطوک تیزی کے ساتھ وہاں آتے ہیں۔ ان کے آتے ہی ہیرا چلی جاتی ہے اور بران گکتوک سے پوچھتا ہے، بھائی کیا تم ٹھیک ہو؟ جواباً گکتوک کہتا ہے، بران میں ٹھیک ہوں۔ اس کے ساتھ ہی کمرال ابدال گکتوک کا زخم داغ دیتے ہیں اور پھر اس پر مرہم لگاتے ہوئے کہتے ہیں، درد ہو رہا ہے نا گکتوک؟ تو گکتوک کہتا ہے، نہیں ہو رہا کمرال ابدال، نہیں ہو رہا۔ اس پر کمرال ابدال کہتے ہیں، میرے جانباز میری مراد یہ نہیں، میری مراد تمہارا دل ہے۔ پھر کمرال ابدال بلند آواز سے کہتے ہیں، اللہ اللہ، راز کھل گیا، میں نے راز کھول دیا گکتوک۔ یہ سن کر گکتوک، بران اور سلطوک حیران و پریشان ہو جاتے ہیں۔ کمرال ابدال مزید کہتے ہیں، عثمان صاحب کے جانبازوں کو دیکھو، ہر ایک کا زخم مختلف طریقے سے بڑھ رہا ہے، مختلف قسم کے امتحانات ہیں۔ پھر کمرال ابدال انہیں حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ شفا خاتون رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت محبت کرتے تھے۔ شفا خاتون کے چاہنے والے بہت زیادہ تھے، مگر وہ کسی کو نہیں چاہتے تھے، ان کی واحد طلب اللہ تعالیٰ کی رضا تھی۔ ہمارے پیارے پیغمبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے
मुझे क्या करना चाहिए। खूबसूरत नाम के मालिक हमारे प्यारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शिफा कमारे शख्स का ईमान अधूरा है, अपने ईमान की तकमील के लिए निकाह करो। तो फिर शिफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि मेरे लिए एक ऐसे शख्स का इंतखाब करें जिससे मैं निकाह करूं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल नमाज फजर में आने वाले पहले शख्स से तुम्हारा निकाह कर दूंगा। शिफा खातून के चाहने वाले बहुत थे, इसलिए कालीन और सोना बिछाते थे। सारे के सारे सबसे पहले उठकर फजर की नमाज पढ़ने के ख्याल से सो गए, जबकि हजरत सुहैब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये समझते थे कि वो शिफा खातून के लायक नहीं है और अपनी मोहब्बत को नामुमकिन समझते थे, मगर उनका दिल शिफा शिफा करते धड़कता था। लेकिन हजरत सुहैब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आवाज नहीं निकाली। ये सारी बातें सुनते सुनते गुफ्तगू पूछता है, क्या हजरत सुहैब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नमाज के लिए नहीं गए? तो कुमराल अब्दाल अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, गए लेकिन आराम आराम से। क्या आदमी अपनी तकदीर से भाग सकता है मेरे जांबाज? जो तीर तुम्हें लगाया है क्या तुम उससे भाग सकते थे? जो साहबा कराम शिफा खातून को चाहते थे वो सुबह बेदार ना हो सके। अपनी सुस्त रफ्तार के बावजूद सबसे पहले मस्जिद में हजरत सुहैब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दाखिल हुए। इसके साथ ही सल्तोक बड़ी बेचैनी से पूछता है, क्या उन्होंने अपनी महबूबा को पा लिया? तो कुमराल अब्दाल मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ पा लिया और आखिरकार आशिक मिल गए। ये मोहब्बत की दास्तान सुनते सुनते बुरान की आंखों से आंसू बह पड़ते हैं और कुमराल अब्दाल बुलंद आवाज से कहते हैं, राज खुल गया। इसके आगे रुकावट बनना नामुमकिन है। यह सुनकर गुप्तो के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। दूसरी तरफ उस्मान और हीरा गवर्नर सागोरस के पास मौजूद होते हैं। इसी लम्हे सागोरस को होश आ जाता है। यह देखकर हीरा बहुत खुश होती है और सागोरस हीरा से पूछता है, बेटी क्या तुम ठीक हो? जवाबन हीरा कहती है, मैं ठीक हूँ, खुदावंद का शुक्र है कि आप भी ठीक हैं। फिर सागोरस उस्मान से कहता है, उस्मान साहब आपने यही मेरे सर के ऊपर खड़े होकर इंतजार किया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी और मेरी बेटी की जान बचाई। तो उस्मान कहता है, जिंदगी और मौत देने वाली जात अल्लाह की है और इस शिफा का जरिया कुमराल अब्दाल है। अब आप जरा आराम करें। यह कहते साथ ही उस्मान वहाँ से चला जाता है। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे सौगत सराय में कई मर्द और खवातीन बहुत परेशान खड़े होते हैं। इसलिए मैं उस्मान बुरहान के साथ वहाँ आता है और कहता है, अल्लाह का शुक्र है सागोरस ठीक है। यह सुनकर तमाम लोग सुख का सांस लेते हैं। उस्मान मजीद कहता है, मगर हदफ हम नहीं बल्कि सागोरस था। पहले वो लोग उसे कत्ल करते और फिर उसके कत्ल का बहाना बनाकर हम पर हमला आवर होते। तो सज्जान खातून कहती है, जो लोग हमें जंग में शिकस्त नहीं दे पाए वो हमारे खिलाफ इस तरह के खेल खेल रहे हैं हुजूर। इस पर उस्मान कहता है, इस वजह से हमें हर वक्त चौकन्ना रहना होगा। 22 सिपाहियों को जंग के लिए तैयार करें। हम सागोरस के साथ एनागोल जाएंगे, मगर हम एनागोल की सरहद अपनी तलवार के इस्तेमाल किए बगैर पार करेंगे। फिर इसके बाद हम कान पर हमला करेंगे। हमारे सिपाही अंदर ही होंगे और वो अंदर वालों को मार रहे होंगे। बाहर वाले लोगों से हम निमट लेंगे, बिल्कुल बेड़ियों के झुंड की तरह। इस पर तमाम लोग सीनों पर हाथ रखते हुए कहते हैं, जैसे आपका हुक्म हुजूर। दूसरी जानिब हरमन का अकेले में कोशिश बहुत परेशान बैठा होता है। इस लम्हे जूलिया मुंह लटकाए कमरे में दाखिल होती है। जूलिया को देखकर कोशिश कहता है, क्या तुम कामयाब हो गई? तो जूलिया कहती है, वहाँ भीड़ बहुत ज्यादा थी गवर्नर कोशिश, मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। यह सुनकर कोशिश इंतहाई गुस्से में आगे बढ़ते हुए कहता है, फिर क्या हुआ? जवाबन जूलिया कहती है, मैं बाहर इंतजार कर रही थी, सिपाहियों ने हरकत शुरू की, मैंने इंतजार किया मगर मेरे लोग नहीं आए। उस्मान के सिपाहियों ने पूरे सौगात में छानबीन शुरू कर दी, इसलिए मुझे भागना पड़ा। इस पर कोशिश एकदम से जूलिया के गले पर खंजर रख लेता है और कहता है, सिर्फ एक चीज है जिसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ, क्या सागोरस मर गया? जूलिया के जवाब न देने पर कोशिश एक बार फिर गुस्से से पूछता है, क्या सागोरस मर गया? तो जूलिया हंपते कांपते हुए कहती है, नहीं मरा कोशिश। यह सुनकर कोशिश के पसीने छूट जाते हैं और वो गुस्से से अपना खंजर फेंक देता है, जो बाज़ंतीनी सिपाही के पास से होता हुआ दरवाजे में जा लगता है। फिर कोशिश जूलिया को धकेलते हुए कहता है, यहाँ से दफा हो जाओ। यह सुनते ही जूलिया वहाँ से चली जाती है। इधर सौगात में सागोरस समेत तमाम लोग वापसी के लिए तैयार खड़े होते हैं और सागोरस उस्मान से कहता है, हम यहाँ आए और आपने हमारा बहुत इज्जत अफजाई के साथ खैर मकदम किया। अब हम जा रहे हैं तो आप फिर भी वैसा ही उसने सलूक दिखा रहे हैं। तो उस्मान कहता है, हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे। जवाबन सागोरस कहता है, क्या मतलब उस्मान साहब? हमारे दुश्मन हमारे खिलाफ खुफिया चाले चल रहे हैं, मगर मेरा नहीं ख्याल कि वो रास्ते में हम पर हमला करने की जरूरत करेंगे। इस पर उस्मान कहता है, वो किसी हद और हुदूद को नहीं जानते, मगर वो रास्ते में जाल बिछाना अच्छे से जानते हैं। कल जो हुआ उसे मत भूलिएगा, मैं और मेरे सिपाही आपके हमरा जाएंगे। यह सुनकर सागोरस पूछता है, क्या आपको हमले के बारे में कोई खबर मिली है उस्मान साहब? आपके लिबास से ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी सफर पर नहीं बल्कि जंग पर जा रहे हो। तो उस्मान कहता है, उनके खेल और उनकी चालें रेगिस्तान की मिट्टी की तरह है, इसलिए हम हर वक्त चौकन्ना रहते हैं और जंग के लिए तैयार रहते हैं। फिर सागोरस गुप्तो के पास जाकर कहता है, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ कि तुमने मेरी बेटी की जान बचाई। जवाबन गुप्तो कहता है, बहुत शुक्रिया, मगर मेरी जगह कोई भी होता तो ऐसा ही करता। इसके साथ ही तमाम लोग घोड़ों पर सवार होकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। दूसरी जानिब हरमन के किले में मारी और कॉर्नेलिया सहन में आती है।
जहाँ कोशिश सिपाहियों के साथ तैयार खड़ा होता है। मारी को देखकर कोशिश कहता है, मेरी खूबसूरत बहन खुश आमदीद। यह कहते साथ ही कोशिश मारी को एक खूबसूरत हाथ पहना देता है और कहता है, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें खुशी होगी। नेकुला एक अक्लमंद शख्स है, वो कभी तुम्हें उदास नहीं करेगा। तो मारी कहती है, आपने हमेशा मेरा ख्याल रखा और मुझे खुश देखना चाहा, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ भाई। यह कहते साथ ही मारी कोशिश के गले लग जाती है और मजीद कहती है, बहुत अरसे बाद आपको इस तरह मुस्कुराते हुए देखा है भाई। जॉबन कोशिश कहता है, क्यों नहीं, मैं बिल्कुल खुश हूँ क्योंकि ये मेरी बहन की जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है। इसके साथ ही वो सब घोड़ों की जानिब बढ़ते हैं और बगी पर सवार होने से पहले कॉर्नेलिया मारी से पूछती है, अगर तुर्गुत साहब वक्त पर ना पहुंचे तो? जॉबन मारी कहती है, अगर वो ना आए तो नेकुला मारा जाएगा। यह कहते ही मारी कॉर्नेलिया को बाजू में छुपाए हुआ खंजर दिखाती है और मजीद कहती है, अगर ऐसा ना हुआ तो तुम मुझे अच्छे अल्फाज में याद रखना। यह कहते साथ ही वो दोनों बगी में सवार हो जाते हैं। उधर तुर्गुत अपने और कई जांबाजों के साथ एक सरसब्ज़ शादाब मैदान में आंधी और तूफान की तरह घोड़े दौड़ा रहा होता है और वह सब मंजिल की जानिब बढ़ते ही चले जाते हैं। दूसरी जानिब उस्मान सागरोस के साथ जंगल में सफर कर रहा होता है, जबकि एनागोल की सरहद पर आर्गोस बाजंतीनी सिपाहियों के साथ पहरा दे रहा होता है। इसी लम्हे एक बाजंतीनी सिपाही उनकी जानिब आते हुए बुलंद आवाज से कहता है, जनाब वो आ रहे हैं। यह सुनकर आर्गोस अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ता है। इसी लम्हे उस्मान अपने जांबाजों के साथ वहां पहुंचता है। उस्मान को देखकर आर्गोस को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस्मान ये रास्ता इस्तेमाल करने की? तो उस्मान कहता है, हम किसी भी कुत्ते को जवाब दे नहीं है, तुम तो फिर भी कुत्ते के गुलाम हो, मेरे रास्ते से हट जाओ। यह कहकर उस्मान अपने जांबाजों के साथ जैसे ही आगे बढ़ता है तो तमाम बाजंतीनी सिपाही अपनी तलवारें बेनियाम कर लेते हैं। जॉबन उस्मान के जांबाज भी होशियार हो जाते हैं। इसी लम्हे गवर्नर सागरोस सामने आता है और गुस्से से कहता है, क्या कोई मसला है? तो आर्गोस कहता है, मुझे मालूम नहीं था कि आप भी यहाँ मौजूद हैं जनाब। इस पर सागरोस कहता है, अब जान चुके हो तो रास्ता खोल दो। यह सुनते ही आर्गोस बाजंतीनी सिपाहियों के साथ रास्ता छोड़ देता है और उस्मान अपने जांबाजों के साथ एनागोल की सरहद पार करने में कामयाब हो जाता है, जबकि मुंह लटकाए हुआ आर्गोस उन्हें तकता ही रह जाता है। दूसरी जानिब एनागोल किले में नेकुला शादी का जोड़ा पहने तैयार खड़ा होता है, जबकि उसके पास खड़ा रुगतोस कहता है, कुछ ऐसा भी है जो अच्छा नहीं है नेकुला। गवर्नर सागरोस और उसकी बेटी अभी तक जिंदा है। यह सुनकर नेकुला की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो कहता है, क्या ये कैसे हुआ? तो रुगतोस कहता है, मेरे बंधु ने सागरोस को जख्मी कर दिया था मगर भाग नहीं सके। इस पर नेकुला गुस्से से लाल हो जाता है और अपना चौका जमीन पर फेंकते हुए कहता है, सबके सब जहन्नुम में जाए, मैं उन सबको अपने हाथों से मार डालूंगा, सिर्फ इस वजह से कि तुम्हारे नाअहल सिपाही सागरोस को मार ना सके। अब मुझे शादी के जोड़े के बजाय जरा पहननी पड़ेगी। जवाबन रुगतोस चिल्लाते हुए कहता है, तो फिर अपनी शादी में से कुछ वक्त निकालो और खुद जाकर उसे मारो। उधर तुर्गुत अपने जांबाजों के साथ जंगल में खड़ा मारी की जानिब से दी गई अंगूठी को देख रहा होता है। इसी लम्हे कोतान घोड़ा दौड़ाता हुआ वहां आता है और घोड़े से उतरने के बाद तुर्गुत से कहता है, जनाब वो लोग आ रहे हैं। यह सुनकर तुर्गुत कहता है, आने दो उन्हें। फिर तुर्गुत सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों आप लोग अपना काम जानते हैं। इस पर तमाम सिपाही एक जान होकर कहते हैं, बिल्कुल जनाब हम जानते हैं। तो नाज़रीन इसके साथ ही आज के एपिसोड का इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको एपिसोड पसंद आएगी। अगर आपको एपिसोड पसंद